Xo'p bo'ladi. Uni ismini meni oldimda tilingga olma. Hali bunga erta. Yaxshi gap hali yo'q. Ana o'li kelib yuragimiz chiqib ketdi. Pulni yeb ketibdi. Xullas, buxgalter. Keyin alohida hisob ochgan ekan. Muzlatilgan puldan to'laymiz. Maoshga kelsak, pul yetmayapti. 10 poyez yerlarniki degin. Ana o hakkil bolalaring chaqir. Uni ham topamiz. Ha, o'shani. 5 milliardni aytyapsanmi? 10% ko'p emasmi? Topadi ular. Agar o'shani ham qaytarib olsak, ha mayli, o'zim gaplashaman. Bir marta ularga ishim tushgan. Ana boy, Balo qazo arigani rost bo'lsin. Arzimaydi. Senga rahmat. Ha, sizlar ko'zim ochib qo'ydilaring-ku. ana ko'zlari ham ochilib qoldi. Arzimaydi. Hammasi uchun rahmat. Sadoqating uchun. Mayli, men sizlarga xalaqit bermay. Ko'ngil aldamchi bo'ladi, shuni bilasanmi? Menda ham qalb bor, ko'ngil bor. Kim seni buyum deyapti? Istagan odamingizga berib boradigan. Men bitta gapiraman. Dada, Men Saidga laf siqib qo'ydim. dada, men o'ylab ko'rdim. Bir kunda shuncha yangilik deng. Militsiyaga ham qidiruvga berdik. Uni fosh qildik. Bugun bitirib ketishim kerak. O'zi ham juda ham ayyor ayol ekan. Xo'p bo'ladi. Uni ismini meni oldimda tilingga olma. Hali bunga erta. Yaxshi gap hali yo'q. Ana o'li kelib yuragimiz chiqib ketdi. Pulni yeb ketibdi. Xullas, buxgalter. Keyin alohida hisob ochgan ekan. Muzlatilgan puldan to'laymiz. Maoshga kelsak, pul yetmayapti. 10 poyez yerlarniki degin. Ana o hakkil bolalaring chaqir. Uni ham topamiz. Ha, o'shani. 5 milliardni aytyapsanmi? 10% ko'p emasmi? Topadi ular. Agar o'shani ham qaytarib olsak, ha mayli, o'zim gaplashaman. Bir marta ularga ishim tushgan. Ana boy, Balo qazo arigani rost bo'lsin. Arzimaydi. Senga rahmat. Ha, sizlar ko'zim ochib qo'ydilaring-ku. ana ko'zlari ham ochilib qoldi. Arzimaydi. Hammasi uchun rahmat. Sadoqating uchun. Mayli, men sizlarga xalaqit bermay. Ko'ngil aldamchi bo'ladi, shuni bilasanmi? Menda ham qalb bor, ko'ngil bor. Kim seni buyum deyapti? Istagan odamingizga berib boradigan. Men bitta gapiraman. Dada, Men Saidga laf siqib qo'ydim. dada, men o'ylab ko'rdim. Bir kunda shuncha yangilik deng. Militsiyaga ham qidiruvga berdik. Uni fosh qildik. Bugun bitirib ketishim kerak. O'zi ham juda ham ayyor ayol ekan. किस्त का आगाज़ अफजल और जहांगीर की खुफिया मुलाकात से होता है। ये दोनों किरदार अपनी मुश्तरका दुश्मन नज़ाकत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो रहे हैं। अफजल जहांगीर को बताता है कि नज़ाकत ने जिस तरह माजी में दूसरों के घर बार तबाह किए हैं और दौलत पर कब्ज़ा किया है, वो इन दोनों को भी अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है और अपने रास्ते से हटा चुकी होगी। अफजल के पास कुछ ऐसी खुफिया तस्वीर और वीडियो सबूत वगैरह हैं जो नज़ाकत की हकीकत खोलकर सामने रख सकते हैं। जहांगीर पहले तो समझता है कि ये तस्वीर फ़ोटोज़ शाफ्ड हो गई हैं, लेकिन अफजल इसे यकीन दिलाता है कि ये वीडियोज़ असली हैं जिनका नज़ाकत के पास कोई बहाना भी नहीं होगा। वो ये बात साबित कर लेगा कि नज़ाकत का खेल ख़त्म करने का फ़ैसला करते हैं।
वो कहता है कि नज़ाकत को तबाह व बर्बाद करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी चल सकते हैं। इसके लिए इनको जो सबूत तैयार करना पड़ेंगे ये वो भी करेंगे, लेकिन हालांकि इनके पास सबूत हैं और वो सबूत बिल्कुल असली हैं और वो नज़ाकत को तबाह व बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी हैं। ऐसे सबूत हैं जिनका नज़ाकत को भी अभी तक मालूम नहीं है और ये ऐसी चाल चल रहे हैं कि नज़ाकत को इसका पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। इसके बाद कहानी पर अस्पताल की तरफ मोड़ लेती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा और अमीर किरदार सादिक तरगुनविच अपने इलाज के लिए दाखिल होता है। इसी अस्पताल में जुल्फिया नामी खातून नई हेड नर्स बनती हैं और वहां पर परी नाम की एक नर्स भी होती है जो कि काम करती है। जैसे ही सादिक तरगुनविच वहां पहुंचता है और परी की नज़र इस पर पड़ती है तो परी का रंग उड़ जाता है और माजी की तलखियाँ इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती हैं। जब बानो सादिक की नई बीवी परी से कहती है कि वो कमरा नंबर 3 में जाकर सादिक को ड्रिप लगा दे तो परी सादिक साफ इनकार कर देती है और वो गुस्से से कहती है कि मैं इस मरीज़ के कमरे में कदम भी नहीं रखूँगी। अगर वजह जानती है तो अपने शौहर से पूछो कि परी कौन है और उससे जाके पूछो कि परी को क्या वह जानता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दो ख़वातीन आपस में बैठी बानो और तरगुनविच के बारे में बातें कर रही होती हैं और परी के बारे में भी बात कर रही होती हैं कि परी है कौन और ये इसने इनकार क्यों किया है। कमरे के अंदर बानो सादिक को तरगुनविच को बताती है कि बाहर एक नर्स ने तुम्हारा नाम सुनकर अंदर आने से मना कर दिया है और वो तुम्हारा नाम परी बता रही है थी। ये सुनकर सादिक घबरा जाता है और बानो के सामने खुद को मजलूम जाहिर करने की पूरी कोशिश करता है। वो बानो को बताता है कि परी माजी में सिर्फ एक रात के लिए इसकी बीवी बनी थी, लेकिन वह एक लालची औरत थी जिसे इसने गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस दिया, फिर भी इसने कदर नहीं की और बाद में भी वो जेल चली गई। सादिक बानो को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ बानो से प्यार करता है, ना कि किसी परी से प्यार करता है। जब बानो बाहर निकलती है तो इसका सामना दोबारा नर्स परी से हो जाता है। बानो तकब्बुर से परी से कहती है कि तुमने मेरे शौहर की इतनी दौलत ठुकरा दी, तुम्हें तो ऐश करना चाहिए था। इस पर परी तरफ उठती है और बानो के सामने असल सच्चाई का बम फोड़ती है। परी रोते हुए बताती है कि इस जालिम बूढ़े ने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे 2 बच्चे और मेरा प्यारा सा शौहर मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिए। इसने मुझे अपनी ओस का निशाना बनाया, मुझे एक ख़तरनाक बीमारी लगाई और जब मेरा सब कुछ लुट गया तो इसने मुझसे कहा कि मेरे घर आ जाओ और मेरी बीवी बन जाओ। इसने मुझसे गाड़ी और बैंक के पैसे भी छीन लिए और मुझे सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। परी बानो की आंख खोलते हुए कहती है कि इस बूढ़े पर कभी भरोसा मत करना, ये जो कुछ तुम्हें दे रहा है ना, एक दिन तुमसे सब छीन लेगा। ये बात सच्ची बात है और मैं इस बात का अंदाज़ा तुम्हें अच्छे से बता सकती हूँ कि ये सब धोखा है और वो तुम्हारे साथ भी खेल रहा है जिस तरह इस शख्स ने मेरे साथ खेला और मुझे बर्बाद किया है। परी की बातें सुनने के बाद बानो के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो रेस्टोरेंट में सादिक के सामने बैठी होती है तो इसके दिमाग में सिर्फ परी की बातें घूम रही होती हैं। वो बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा सादिक से सवाल करती है कि क्या तुमने वाकई परी से घर और गाड़ी वापस ले ली थी। सादिक कहता है कि हाँ, जो औरत मेरी वफादार नहीं थी मैंने इसे अपनी दौलत क्यों दूँ। बानो ये सुनकर अंदर से डर जाती है और सोचती है कि ये बूढ़ा जितना मासूम दिखता है इतना है नहीं, अंदर से इतना ही पक्का और अय्यार है। बानो वही फैसला करती है कि इससे पहले कि सादिक इसको भी सड़क पर वारिस छोड़ दे, इसे वक्त रहते यहाँ से सारा पैसा और फ़ायदा समेट कर भाग जाना चाहिए, वरना इसका शिकार भी ये हो जाएगी। ड्रामे के मुतवाज़ी मनाजिर में एक माँ अपने बेटे पर ज़बरदस्ती दूसरी शादी के लिए दबाव डालती है क्योंकि इसकी पहली बीवी लेना इसे छोड़कर जा चुकी होती है। वो बेटे को पार्क में एक लड़की के सामने भेजती है जहाँ बेटा सिर्फ अपनी माँ का दिल रखने के लिए चला जाता है। इसी दौरान एक दूसरे अच्छे जोड़े का मंजर दिखाया जाता है जहाँ शौहर अपनी नाराज़ बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए इसकी आंखें बंद करके एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में लाता है। वो इसे एक शानदार तोहफ़ा देता है और दोनों के दरमियान माजी की तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं।
قسط کے آخر میں مناظر دکھایا جاتا ہے کہ افضل ریسٹورنٹ کے باہر نزاکت کو گھیر لیتا ہے۔ نزاکت ہمیشہ کی طرح مغرور انداز میں کہتی ہے، تم پھر فوٹو شاپ کی تصویریں لائے ہو؟ میں اور میرا شوہر تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اس دفعہ میں تصویریں نہیں بلکہ اصل ویڈیو لایا ہوں۔ یہ ایک ایسا بڑا بم ہے جو تمہاری حقیقت تمہارے شوہر کے سامنے لا کر تمہیں برباد کر دے گا۔ افضل کی یہ بات سن کر وہ ڈر جاتی ہے۔ قسط کا آغاز افضل اور جہانگیر کی خفیہ ملاقات سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں کردار اپنی مشترکہ دشمن نزاکت کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ افضل جہانگیر کو بتاتا ہے کہ نزاکت نے جس طرح ماضی میں دوسروں کے گھر بار تباہ کیے ہیں اور دولت پر قبضہ کیا ہے، وہ ان دونوں کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اپنے راستے سے ہٹا چکی ہوگی۔ افضل کے پاس کچھ ایسی خفیہ تصاویر اور ویڈیو ثبوت وغیرہ ہیں جو نزاکت کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جہانگیر پہلے تو سمجھتا ہے کہ یہ تصاویر فوٹوز شاپڈ ہو گئی ہیں، لیکن افضل اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں جن کا نزاکت کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ یہ بات ثابت کر لے گا کہ نزاکت کا کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نزاکت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی چال چل سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کو جو ثبوت تیار کرنا پڑیں گے یہ وہ بھی کریں گے، لیکن حالانکہ ان کے پاس ثبوت ہیں اور وہ ثبوت بالکل اصلی ہیں اور وہ نزاکت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ ایسے ثبوت ہیں جن کا نزاکت کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے اور یہ ایسی چال چل رہے ہیں کہ نزاکت کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد کہانی پر ہسپتال کی طرف موڑ لیتی ہے، جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا اور امیر کردار صادق ترگونوچ اپنے علاج کے لیے داخل ہوتا ہے۔ اسی ہسپتال میں زلفیہ نامی خاتون نئی ہیڈ نرس بنتی ہیں اور وہاں پر پری نام کی ایک نرس بھی ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے۔ جیسے ہی صادق ترگونوچ وہاں پہنچتا ہے اور پری کی نظر اس پر پڑتی ہے تو پری کا رنگ اڑ جاتا ہے اور ماضی کی تلخیاں اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ جب بانو صادق کی نئی بیوی پری سے کہتی ہے کہ وہ کمرہ نمبر 3 میں جا کر صادق کو ڈرپ لگا دے تو پری صادق صاف انکار کر دیتی ہے اور وہ غصے سے کہتی ہے کہ میں اس مریض کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اگر وجہ جانتی ہے تو اپنے شوہر سے پوچھو کہ پری کون ہے اور اس سے جا کے پوچھو کہ پری کو کیا وہ جانتا ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دو خواتین آپس میں بیٹھی بانو اور ترگونوچ کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور پری کے بارے میں بھی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ پری ہے کون اور یہ اس نے انکار کیوں کیا ہے۔ کمرے کے اندر بانو صادق کو ترگونوچ کو بتاتی ہے کہ باہر ایک نرس نے تمہارا نام سن کر اندر آنے سے منع کر دیا ہے اور وہ تمہارا نام پری بتا رہی تھی۔ یہ سن کر صادق گھبرا جاتا ہے اور بانو کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ بانو کو بتاتا ہے کہ پری ماضی میں صرف ایک رات کے لیے اس کی بیوی بنی تھی، لیکن وہ ایک لالچی عورت تھی جسے اس نے گاڑی، بنگلہ اور بینک بیلنس دیا، پھر بھی اس نے قدر نہیں کی اور بعد میں بھی وہ جیل چلی گئی۔ صادق بانو کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ صرف بانو سے پیار کرتا ہے، نہ کہ کسی پری سے پیار کرتا ہے۔ جب بانو باہر نکلتی ہے تو اس کا سامنا دوبارہ نرس پری سے ہو جاتا ہے۔ بانو تکبر سے پری سے کہتی ہے کہ تم نے میرے شوہر کی اتنی دولت ٹھکرا دی، تمہیں تو عیش کرنا چاہیے تھا۔ اس پر پری تڑپ اٹھتی ہے اور بانو کے سامنے اصل سچائی کا بم پھوڑتی ہے۔ پری روتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس ظالم بوڑھے نے میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی، میرے 2 بچے اور میرا پیارا سا شوہر مجھ سے زبردستی چھین لیے۔ اس نے مجھے اپنی اوس کا نشانہ بنایا، مجھے ایک خطرناک بیماری لگائی اور جب میرا سب کچھ لٹ گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر آ جاؤ اور میری بیوی بن جاؤ۔ اس نے مجھ سے گاڑی اور بینک کے پیسے بھی چھین لیے اور مجھے سڑک پر لاوارث چھوڑ دیا۔ پری بانو کی آنکھ کھولتے ہوئے کہتی ہے کہ اس بوڑھے پر کبھی بھروسہ مت کرنا، یہ جو کچھ تمہیں دے رہا ہے نا، ایک دن تم سے سب چھین لے گا۔ یہ بات سچی بات ہے اور میں اس بات کا اندازہ تمہیں اچھے سے بتا سکتی ہوں کہ یہ سب دھوکہ ہے اور وہ تمہارے ساتھ بھی کھیل رہا ہے جس طرح اس شخص نے میرے ساتھ کھیلا اور مجھے برباد کیا ہے۔
परी की बातें सुनने के बाद बानो के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और वो रेस्टोरेंट में सादिक के सामने बैठी होती है तो इसके दिमाग में सिर्फ परी की बातें घूम रही होती हैं। वो बगैर वक्त ज़ाया किए सीधा सादिक से सवाल करती है कि क्या तुमने वाकई परी से घर और गाड़ी वापस ले ली थी। सादिक कहता है कि हाँ, जो औरत मेरी वफादार नहीं थी मैंने इसे अपनी दौलत क्यों दूँ। बानो ये सुनकर अंदर से टूट डर जाती है और सोचती है कि ये बूढ़ा जितना मासूम दिखता है इतना है नहीं, अंदर से इतना ही पक्का और अय्यार है। बानो वहीं फैसला करती है कि इससे पहले कि सादिक इसको भी सड़क पर वारिस छोड़ दे, इसे वक्त रहते यहाँ से सारा पैसा और फ़ायदा समेट कर भाग जाना चाहिए, वरना इसका शिकार भी ये हो जाएगी। ड्रामे के मुतवाज़ी मनाजिर में एक माँ अपने बेटे पर ज़बरदस्ती दूसरी शादी के लिए दबाव डालती है क्योंकि इसकी पहली बीवी लेना इसे छोड़कर जा चुकी होती है। वो बेटे को पार्क में एक लड़की के सामने भेजती है जहाँ बेटा सिर्फ अपनी माँ का दिल रखने के लिए चला जाता है। इसी दौरान एक दूसरे अच्छे जोड़े का मंजर दिखाया जाता है जहाँ शोहर अपनी नाराज़ बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए इसकी आंखें बंद करके एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में लाता है। वो इसे एक शानदार तोहफ़ा देता है और दोनों के दरमियान माजी की तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके आखिर में मनाजिर दिखाया जाता है कि अफजल रेस्टोरेंट के बाहर नज़ाकत को घेर लेता है। नज़ाकत हमेशा की तरह मगरूर अंदाज में कहती है, तुम फिर फ़ोटोशॉप की तस्वीरें लाए हो। मैं और मेरा शोहर तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वो कहता है कि इस दफ़ा मैं तस्वीरें नहीं बल्कि असल वीडियो लाया हूँ। ये एक ऐसा बड़ा बम है जो तुम्हारी हकीकत तुम्हारे शोहर के सामने लाकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। अफजल की ये बात सुनकर वो डर जाती है